What are the number one determiner for the startup success, right? The answer is going to be very different and very confidential. So I request you to kind of stay along to the entire length of the video so that you get a context of the same. Number one thing which most people might think is VC funding, right? आखिरकार सबको यही लगता होगा कि अगर वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल गया तो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर्स आर बिलीविंग इन द बिजनेस और इसमें पोटेंशियल है कि वो बड़ा बन सकता है, एंड विद दैट काइंड ऑफ मनी आपका बिजनेस आप ग्रो कर लोगे. बट इट्स नॉट दैट सिंपल. VC मनी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड इवन आफ्टर VC मनी लॉट ऑफ कंपनी स्टिल गो बस्ट, राइट? मतलब VC मनी इज नॉट अ गारंटी कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा. सो दैट्स वाई द नंबर वन assumption that the venture capital is the answer is wrong. Next question you might think, if I can grow my company with revenues, that would be a good determiner beyond the success of a startup, right? And you might be partially right. Startup success में essentially revenues are the ones जहाँ पे हमें end में measure होता है कि कितने revenues आ रहे हैं, कितनी marketing हो रही है, और that will determine whether the startup is successful or not. So that is partially right, but revenue is more of an outcome. Growth is more of an outcome. There is something which is much more fundamental which determines to do that, right? और वो fundamental चीज़ करने के लिए how is that possible? कैसे आप business को grow करोगे, कैसे funds उठाओगे? There is something much more underlying layer होता है. वो underlying layer which is the biggest determining factor of the success of the startup is the quality of the team, the quality of the leadership, and hiring the best people. This is the most important thing to grow any business. जो आपकी लीडरशिप टीम का, फाउंडिंग टीम का और इवन एम्प्लॉयज़ का क्वालिटी होगा वो आपके स्टार्टअप को डिटरमाइन करेगा सक्सेस को. अब मैं आपको बताता हूँ क्यों. एसेंशियली द नंबर वन फैक्टर कि कोई स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल नहीं होता है उसका नंबर वन डिटरमाइनर इज प्रोडक्ट मार्केट फिट. प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे होता है? आप प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंटली ट्राई करो, आइट्रेट करो, एक्सपेरिमेंट करो, कॉन्स्टेंटली नई नई चीज़ें करते जाओ, एंड इवेंचुअली यू फाइंड अ प्रोडक्ट जो मार्केट को पसंद आ रहा है एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर इट. दैट स्टेज इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट. अभी अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर आप अच्छा हायर करते हो उसको टाइम लगेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बट इवेंचुअली आप प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट कर लोगे और आपकी कंपनी ग्रो हो जाएगी. बट अगर आप एवरेज लेवल का प्रोडक्ट मैनेजर हायर करते हो वो इस तरह कैसे ग्रो नहीं कर पाएगा, बीच में वो छोड़ देगा, आपकी कंपनी प्रोडक्ट मार्केट फिट हिट नहीं करेगी और आप कभी आपके बिजनेस को उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाओगे. ये डिफरेंस होता है एक अच्छे और बुरे प्रोडक्ट मैनेजर में जो पूरे स्टार्टअप का सक्सेस डिटरमाइन करती है. दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. दैट इज वाई हैविंग अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर, which essentially means a good employee in your team, is the number one factor which determines the success of a startup. The next point over here, why the startups fail, उसका नंबर 2 कारण होता है फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट या द लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट. अगर फाउंडर्स की आपस में बन नहीं रही है, लीडरशिप टीम की बन नहीं रही है और लीडरशिप टीम की फाउंडर्स की आदत नहीं बन रही है, दैट इज ऑल्सो ह्यूज रीजन वाई कंपनीज फेल. सो दैट इज वाई द 2 biggest factors of startup success are human related, and that shows essentially any startup is just a collection of people working together to build something amazing, and that is why hiring the best people is the most important thing which you can do in terms of building your startup. So what are the other benefits of hiring great people, right? Number one is innovation and creativity. अगर आप बेस्ट लोगों को लेके आओगे तो naturally they'll be far more innovative, far more creative in terms of solving problems, in terms of coming up with solutions, और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं and in a very innovative ways, right? ये difference maker is huge in terms of regular employees and high performing employees. That is why it's absolutely vital to hire top tier talent because they are far more innovative and far more creative. Next level is expertise and skills. टॉप टैलेंट का डेफिनेटली बिकॉज दे आर टॉप टियर टैलेंट, उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है, स्किल्स ज़्यादा होते हैं. जो चीज़ आपको करने में साल भर लग जाएगा वो 3 से 6 महीने में कर लेंगे. आपका उतना टाइम बचेगा, वो टाइम बचेगा उसमें आपकी कंपनी कितना ग्रो हो सकती है. सो वो डिफरेंस मेकर होता है, वो बहुत ही ह्यूज होता है और वो एक्सपर्टीज एंड स्किल से आप आपका ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट ट्रैक कर सकते हो. और ये चीज़ इस चीज़ की उनको अर्जेंसी भी होती है. सो दे अंडरस्टैंड कि उनको फटाफट मूव करके फटाफट एक्शन लेना है. उनको ये अंडरस्टैंडिंग भी होती है वो लोग अपने स्वीट टाइम पे अपने कंफर्ट के हिसाब से काम नहीं करेंगे. वो लोग दिन का 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करेंगे बिकॉज उनको रिजल्ट लाना है. So this is a huge indicator of that high performance mindset of the top talent. They are extremely driven, extremely motivated. They are driven by a bigger sense of purpose. तो इससे भी आपको ये बहुत डिफरेंस दिखाई देता है कि they are far more passionate about doing their job done. They want to believe that they are making a big impact in the world. और वो motivation goes a long way in terms of building a successful startup. And a lot of these top tier talent they come with their own networks and connections because essentially every business is just a combination of human relations, right? तो human relation एलिमेंट ये लोग आपको लेके आएंगे जो आपको ना सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करेगा बट ऑल्सो आपको बेस्ट टैलेंट हायर करने में भी हेल्प करेगा उनके नेटवर्क और कनेक्शंस के थ्रू. तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड एलिमेंट है जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है.
नेचुरली इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो लीडरशिप और मेंटरशिप है. दे विल नॉट जस्ट ब्रिंग द बेस्ट पीपल इन द कंपनी, दे विल इवन ट्रेन देम, दे विल मेंटर देम एंड ब्रिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ टैलेंट थ्रू द हायर लेवल, जो आपकी कंपनी को और बेटर सर्व कर सकते हैं. ऑल्सो इवेंचुअली एज फाउंडर आपको डे टू डे ऑपरेशन से बाहर निकल के यू नीड टू फोकस मोर ऑन द लीडरशिप एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, द विजन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजिंग इन्वेस्टर्स, मैनेजिंग द स्ट्रेटेजिक एलिमेंट ऑफ द बिजनेस, और ऑपरेशंस आपको लीडरशिप टीम को हायर करना है. तो नेचुरली अगर आपकी लीडरशिप टीम और मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है, आप वो कभी आउटसोर्स कर ही नहीं पाओगे और आप कॉन्स्टेंटली डे टू डे ग्राइंड में फंसे रहोगे. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि आपका बिजनेस 1-2 करोड़ के लेवल पे शायद पहुंच जाए, पर आप कभी उसके बियॉन्ड ग्रो नहीं कर पाओगे. इसके लिए टॉप टियर टैलेंट हायर करना बहुत ज़रूरी होती है. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस. दीज टॉप टियर टैलेंट आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल. कोई भी चैलेंजेस आएंगी, कोई भी एडवर्सिटीज आएंगी, दे विल बी विलिंग टू फेस इट हेड ऑन. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूज रीजंस वाई जो प्रीमियर बी स्कूल्स होते हैं, प्रीमियर इंजीनियरिंग स्कूल होते हैं, जैसे IITs, IIMs, उनको इतना फेवरेटिज्म मिलता है. मैं खुद NM से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि आई एम नेचुरली गॉट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट एज वेल, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ टॉप टियर बी स्कूल. मुझे उसका बेनिफिट मिला है. बट द रीजन बीइंग दैट वी आर used to working very long hours, very diligently, we are very adaptable, and that's why we get that benefit. Now necessarily I'm not saying that we are the only ones, that the top tier graduates are the only ones who get that. Even regular people who don't go to these top B schools, they also have these capabilities, and the ones who show these capabilities are the ones you see those people at the top as well. So these two factors, they go a long way in determining कि आप कितने कंपनी में सक्सेस करोगे और कितनी आपका पर्सनल लाइफ सक्सेसफुल रहेगा. जब आपका लीडरशिप टीम अगर स्ट्रांग रहेगा, तो आप VCs को भी कन्विंस बड़ी आसानी से कर पाओगे, बिकॉज हमारे पास लीडरशिप टीम टॉप की है. VCs will be much more interested in investing in your company. In fact, I know a large company which had raised $200 million of funding through family sources. They were unable to get VC funding because it was running like a family business and not a professionally managed business with top tier talent. इसके कारण उन्हें और फंड रेजिंग करने में डिफिकल्टी हो रही थी. ये डिफरेंस होता है मीडियोकर लेवल टैलेंट में और प्रोफेशनल हाई क्वालिटी टैलेंट में, बिकॉज फैमिली बिजनेस विल ऑपरेट अंडर family guidelines and family rules, but a professionally managed business will operate under professionally managed rules, जिनका पूरा नेचर काफ़ी अलग होता है. एंड दैट इज़ वाई व्हेन यू हायर टॉप टैलेंट, आपकी कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ जाती है. देयर इज़ अ रीज़न वाई गूगल, फेसबुक, एप्पल, इनका मार्केट में नाम है, बिकॉज दे हायर द बेस्ट टैलेंट फॉर द बेस्ट पे, और लोग मरते हैं उस कंपनीज में काम करने के लिए. वो आपकी ब्रांड बन जाती है, बिकॉज व्हेन यू हायर गुड एम्प्लॉइज, यू क्रिएट गुड प्रोडक्ट्स, यू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स, और मार्केट में वो आपके प्रोडक्ट्स में दिखाई देता है, तो वो चीज़ उससे ट्रस्ट बिल्ड होती है. दैट इज़ वाई दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो होपफुली ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहा और इसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे और आपका बिजनेस ग्रो करोगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी कवरिंग अ फ्यू अदर टॉपिक्स ऑफ आप कैसे बेस्ट क्वालिटी टैलेंट को हायर करोगे, उन्हें कैसे रिटेन करोगे और उनके लिए ESOP प्लान कैसे डिवाइस करोगे, ताकि यू कैन हायर दीज पीपल. बिकॉज इनको ना सिर्फ हायर करना होता है, इनको अट्रैक्ट करके रिटेन करना होता है, जो बहुत ज़रूरी होती है. तो इन द फ्यूचर वीडियोज़ में ये चीज़ कवर करूँगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि यू विल बी स्टे इन टच with any future videos that I made. Hopefully you like the video. Take care. Bye bye.